والصلاة والسلام على خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا. کن کو فرمایا؟ ایمان والوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے جاتے تھے. اور فرض کس لیے کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اللہ رب العزت جو ہے اسے اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے. آپ دیکھیں بچہ ماں کے ساتھ جا رہا ہو، بچے کو ٹھیڈا لگے، وہ گر جائے تو ماں تڑپتی ہوئی اسے آگے بڑھ کے اٹھا لیتی ہے اور دیکھتی ہے اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگی. جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ ان کے بچے کو تکلیف ہوئی ہے تو باپ کی جو ہے وہ نیند حرام ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے. ماں کی محبت اور باپ کی محبت کا کیا عالم ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ماں کی محبت سے 70 گنا سے زیادہ محبت کرتا ہے. 70 گنا بھی نہیں، 70 گنا سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب اس نے روزے فرض کر دیے، کتنے عرصے کے؟ 1 ماہ کے فرض کر دیے. اب 1 ماہ میں اس نے جو مومنین تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ صبح سحری کے وقت کھانا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد افطار تک کچھ نہیں کھانا. اب ایک دنیا دار دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے کھانے پینے کے اوپر پابندی لگا کے ایک ظلم کیا ہے. حالانکہ حقیقت نہیں. سائنسدان کینسر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. ریسرچ کرتے کرتے کئی سال انہوں نے لگا دیے، اور لگانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسانی جسم کے اندر کچھ سیلز ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کو بھوک کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے. اگر وہ بھوک جو ہے وہ بندہ برداشت کرے اور تقریباً 1 ماہ تک اس بھوک کو برداشت کرے تو بندہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہی نہیں ہوتا. کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 1 ماہ تک بندہ جو ہے وہ بھوک برداشت کرتا رہے تو اس کے اندر جو سیلز ایکسٹرا جو ڈینجر سیلز پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بھوک کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہو جائیں گے اور بندہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوگا. تو جب سائنسدانوں نے اپنی تھیوری کو پیش کی تو ہم عاشقوں نے کہا ہے اللہ کے بندو، اے پاگلو، تم نے اتنے سال کوشش کر کے اب یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1400 سال پہلے نوٹ کر دیا تھا. سبحان اللہ، 1 ماہ کے روزے اللہ رب العزت کو چونکہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے قریب 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 تر آتے چلے جائیں. ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو ایمان ہے، پختہ در پختہ ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. اب روزے کی حالت ہے، بندہ جو ہے روٹی کھانا اس کے لیے ویسے حلال ہے، پانی پینا ویسے حلال ہے، حقوق زوجیت ادا کرنا ویسے حلال ہے، سارے معاملات حلال ہیں. لیکن جب روزے کی حالت آ گئی وہ سب حلال چیزیں حرام ہوئی. بندہ ایک جو ہے وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے نہیں کھانا کھاتا. اب ایک کمرے میں تنہا بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وہاں بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن اسے تنہائی میں وہ ہے، اس کا خدا ہے، اور جو ہے چیزیں کھانے پینے والی موجود ہیں. لیکن اسے دیکھا جائے تو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، چاہے پیاس کی جتنی مرضی شدت ہو،
भूख की जितनी मर्जी तड़प हो, वो चीजें मौजूद होने के बावजूद वो चीजें बंदा नहीं खाता। हालांकि रोटी भी हलाल है, पानी भी हलाल है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ताला ने ये तकवे की ट्रेनिंग करवाई है। बंदे मोमिन को तकवे की, परहेजगारी की ट्रेनिंग करवाई है कि है मेरे बंदे, मैंने तुझे हुक्म दे दिया कि रोज़े की हालत में ना खाना है ना पीना है, और जो अफ़ाल मैंने मना किए वो सब से रुकना है। तो बंदा मोमिन रोज़े की हालत में उन चीज़ों से रुक जाता है, रुक के तो फिर जो है ना वो बंदा जो है उन चीज़ों से परहेज करता है। तो ये अल्लाह ताला उसे तकवा सिखाता है। क्या मेरे बंदे, तुमने, मैंने रोज़े में तुम्हारे ऊपर ये पाबंदी लगाई और तुमने उसके ऊपर जो है तकवा अख्तियार करके उससे परहेज किया, उससे बचे, तो ये बंदा जो है उसको अल्लाह ताला ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी का एक दायरा मुकर्रर कर दिया है, तुमने उस दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये हदूदुल्लाह मैंने मुकर्रर कर दी हैं, तुमने उन हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे रोज़े की हालत में खाना पीना और जितने दूसरे मामूलात थे वो सब तुमने तर्क कर दिए, इस तरह रोज़ा जो है ना वो तो एक रोज़े की हालत है, उसके बाद है रोज़े को कायम करना कि पूरा साल जो है ये प्रैक्टिस में तुम्हें इसलिए करवा रहा हूँ कि ये जो हलाल चीज़ें भी मैंने तुम्हारे ऊपर हराम कर दी, हलाल चीज़ें भी जो मैंने तुम्हारे ऊपर हराम कर दी वो तुमने उनसे परहेज किया, उनको नहीं खाया, तो जब रमज़ान गुजर जाएगा तो उसके बाद भी मैंने कुछ चीज़ें तुम्हारे ऊपर हराम ही की हैं, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हारे ऊपर हराम ही की हैं, अब तुमने उन हराम से भी बचना है और हलाल रिज़्क़ को खाना है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा में खुद ही अता करूँगा। सुभान अल्लाह, मैं खुद हूँ। इस हदीस का एक जगह पे दूसरा उन्होंने तर्जमा फरमाया कि वहाँ पे अल्फाज है उज्जा बिही, अस्सूम ली अना उज्जा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पहली है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं खुद अता करूँगा, और दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी उसका मतलब ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद महमूद और गज़नवी का, महमूद और याद का वाक़या तो आपने सुना होगा। जी। उसके जो दूसरे मशीर थे, वजीर थे, वो महमूद से कहते थे कि महमूद तो याद के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी हर बात मानता है, उसमें क्या चीज़ है। महमूद ने जवाहरात का एक थाल मंगवाया, उसने जवाहरात, मोती, बड़े कीमती हीरे वो वहाँ पे फेंक दिए, सारे उसका हाल भरा हुआ है। जब उसने हीरे मोती जवाहरात फेंके तो उसके जो वज़ीर मशीर, उसके जो बड़े बड़े वज़रा थे, वो सब हीरो मोतियों जवाहरात की तो ऊपर टूट पड़े और उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महमूद ने जब वो हीरे जवाहरात वहाँ पे फेंक दिए, फेंकने के बाद वो वहाँ से उठा और चल पड़ा, सवारी पे बैठा और निकल गया। उधर अयाज ने जो है वो साथ घोड़ा पकड़ा और वो भी जो है उठ के वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब थोड़ा सा आगे जाकर महमूद ने मुड़ के पीछे देखा तो क्या देखता है कि अयाज जो है वो वहाँ उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो उसने पूछा, अयाज, लोगों को तो माल और दौलत की तलब होती है, हीरे जवाहरात की तलब होती है, मैंने इतने हीरे जवाहरात फेंके हैं, इतने मोती फेंके हैं, तो तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम भी वहाँ पे इकट्ठे कर लेते। तो अयाज ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ऐ मेरे आका, जिनको हीरे जवाहरात की तलब थी वो तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे तो हीरे वाले, मोतियों वाले की तलब थी, इसलिए मैं तेरे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो रोज़ा रखेगा उसकी जज़ा मैं खुद हूँ, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिल जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी थे रबिया, उनका क्या काम था,
आका अलैहिस्सलाम को वज़ू करवाते, आका अलैहिस्सलाम की जूतियाँ सीधी करते, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करते, आका अलैहिस्सलाम को हुक्म देते, वो काम सर बजा लाते, वो खिदमत करते। एक दिन उन्होंने हज़रत रबिया ने आका अलैहिस्सलाम को जब वज़ू करवाया, वज़ू करने के बाद आका अलैहिस्सलाम खुश हो गए और खुश होके कहने लगे रबिया सल, रबिया मांग क्या मांगता है, रबिया मांग क्या मांगता है। अब मान जाऊं उस सहाबी रसूल के ऊपर कि उसको भी कदर थी कि अता करने वाली बारगाह क्या है, अता करने वाली बारगाह क्या है। उसने कहा या रसूल सल्लम, जिस तरह दुनिया में तुम्हारी आपकी खिदमत करता हूँ, इस तरह जन्नत में भी आपकी खिदमत करूँ। जिस तरह जन्नत में भी दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, इस तरह जन्नत में भी आपकी खिदमत करूं। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद आप बड़े कुछ नसीब हैं कि रमज़ान की आमद से पहले पहले आपने बड़ी खूबसूरत और बाबरकत महफिल सजाई है और मिल के नात पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया है और जो है नातें पढ़ी और बड़ा अच्छा अरेंज किया है। एक छोटी सी हदीस जो है वो अपना दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में करके बात को खत्म करने वक्त क्योंकि दफ्तर का है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, एक आका अलैहिस्सलाम की उम्मती के आमाल तोले जाएंगे। जब आमाल का वजन होगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा जो है वो हल्का हो जाएगा। फरिश्ते हिसाब किताब करेंगे, हुक्म होगा कि इसकी नेकियां कम हैं, गुनाह ज़्यादा है, इसको दोज़ख में डाल दिया जाए। जब उसको फरिश्ते लेके दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने सब्ज़ हाला पहना होगा और जब देखेंगे कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मती को लेके जहन्नम की तरफ जाया जा रहा है, तो आप दौड़े दौड़े आएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक उम्मती को फरिश्ते जो हैं वो पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फौरी तौर पे उस तरफ आएंगे, आगे पूछेंगे फरिश्तों क्या मामला है, वो बताएंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अमाल को तोला गया, बुरे अमाल ज़्यादा थे, नेक अमाल कम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि इसको जो है जहन्नम में ले जाओ। हम उस हुक्म की तमील करते हुए इसे जहन्नम में लेके जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इसके अमाल को मेरे सामने तोलो, इसके अमाल को मेरे सामने तोलो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला तेरे महबूब का हुक्म आ गया है। अल्लाह कहेगा जिस तरह मेरा सोना कहते हैं उससे तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। दोबारा अमाल को तोला जाएगा तो जो नेकियों का पलड़ा है वो कम होगा, गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। आका अलैहिस्सलाम एक छोटी सी चिट, छोटा सा पूरा कागज का अपने हाथ से पकड़ के उसके नेकियों वाले पलड़े में डाल देंगे, कहेंगे अब अमाल को तोलो। जब उसके अमाल को तोला जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम कहेंगे इसको अब जन्नत में ले जाओ। जब जन्नत में लेके जाने लगेंगे तो वो बंदा कहेगा ये सोनी मूरत वाले, ए मनमोनी सूरत वाले, ए प्यारी हस्ती, आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं, ये आपने क्या इस मेरे पलड़े नेकी वाले पलड़े में डाला जिसकी वजह से मैं जहन्नमी से जन्नती हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या मेरी उम्मती जरा याद कर, एक दफा तुमने मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा था, ये वो दुरूद पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैंने तेरा नेकियों वाले पलड़े में डाला है तो उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो वो जो है दुरूद पाक की इतनी फजीलत है कि दुरूद एक दफ़ा पढ़े 10 दफ़ा पढ़े। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसमें जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत करें, सूरह यासीन पढ़े और कुरान पाक की जो है वो कसरत करें और नेकी के अमाल करने की कोशिश करें कि सब लोग रोज़ों का एहतमाम करें। रोज़ा रखने से कोई बंदा ना तो कमज़ोर होता है ना बीमार होता है, बल्कि उससे इंसान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि साइंसदानों ने तहकीक करके बताया इवन के कैंसर तक के मर्ज का इलाज जो है वो रोज़े में है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों का अच्छे अंदाज में एहतमाम करके उनसे जो फ्यूज़ और बरक़ात है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।